Good morning, students. Now we will start with our next chapter, that is natural resources. Now, what is a natural resource? Natural resource are those resources which are available naturally, जैसे कि wind है, air है, water है, okay, soil है. These all things are available naturally, so these are known as natural resources. अब कौन कौन से टाइप की natural resources available है on the earth, that we will see. First one is resources on the earth: air, water, soil, minerals and living organisms. आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज़ द लिथोस्फियर. जो आउटर पार्ट है, लैंड एरिया जिसको बोलते हैं, इट इज़ लिथोस्फियर. द वाटर ऑन द अर्थ इज़ हाइड्रोस्फियर. द लेयर ऑफ द एयर अराउंड द अर्थ इज़ एटमॉस्फियर. Living organisms are found where the atmosphere, hydrosphere and lithosphere interact and is the biosphere. So the land area जो है उसको लिथोस्फियर बोलेंगे. Watery part, okay, that is 78% of earth is covered with water, that is known as hydrosphere. Layer of air, the earth is surrounded by envelope of air, that is known as atmosphere. And we the living organisms, बहुत सारे living organisms हैं, plants हैं, animals हैं, human beings हैं, ये सारे आते हैं biosphere में. Next, atmosphere. Air is a mixture of gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor and other gases. During respiration, living organisms use oxygen to break down glucose and gain energy for their activities. This results in the release of carbon dioxide. Burning of fuels also use oxygen and release carbon dioxide. Now, respiration के वक्त we all know कि we inhale what? Oxygen, and we release carbon dioxide. But plants, what do? They inhale carbon dioxide and वो release क्या करते हैं? Oxygen. So this is, it is to maintain, so it maintains the biological cycle. See, look over here. Okay, ये है biological cycle. यहाँ पे जो फैक्ट्रीज जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है, ठीक है, वो जाता है प्लांट्स के पास. प्लांट्स इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रॉड द एक्सेल ऑक्सीजन. नेक्स्ट इज रोल ऑफ एटमॉस्फेयर. Atmosphere covers the earth like a blanket. Air is a bad conductor of heat. It prevents sudden increase in temperature during the day and also slows down the escape of heat during the night. So the atmosphere keeps the average temperature on the earth fairly steady during the day and throughout the year. Now, what does it atmosphere does? जो भी सन से हीट आती है, that it traps, ठीक है, that means उसको वो एस्केप कर देता है वहीं से ही. वाई? बिकॉज एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. इट डज नॉट अलाउ दिस हीट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ. ओके, नाउ मूवमेंट ऑफ एयर. When air gets heated, it rises up and produces low pressure, and cool air moves it to take its place. Movement of air causes winds. During the day, the land gets heated faster than the sea. So the hot air during the day above the land rises up, and cool air from the sea moves towards the land. During the night, sea cools down slowly than the land. So the hot air above the sea rises up and cool air moves towards the sea. Look over here, land के ऊपर की जो warm air है moves up, and cool air on the sea, it moves towards the land. Okay, फिर एट नाइट व्हाट हैपेंस? वार्म एयर, सी के ऊपर की वार्म एयर जो है वो इट राइजेज अप, और उसकी जो प्लेस है, वेकेंट प्लेस हो जाती है, वो कौन ले लेता है? कूल एयर. तो ये साइकिल कंटिन्यू रहती है, एंड जो टेम्परेचर है लैंड का एंड सी का दोनों मेंटेन रहता है. नेक्स्ट, रेन. नाउ एवरीवन नोज कि रेन हाउ इट फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ द ड्यू टू वाटर साइकिल. ओशन का वाटर जो है इवापोरेट होता है, कंडेंस होता है, वाटर वेपर, कुछ जो है ड्रॉपलेट्स वो एयर में रहते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, एंड प्रेसिपिटेशन, दैट इज़
रेन फॉर्म्स। नाउ हमने देखा होगा कि जहाँ पे पानी होता है, जहाँ पे सी होता है, रिवर होता है, वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ह्यूमिड होता है, थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इवापोरेशन की वजह से पानी के अंदर एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाता है। दैट्स वाई वहाँ का क्लाइमेट जो है वो ह्यूमिड होता है। नाउ एयर पोल्यूशन, हाउ एयर इज़ बिन पोल्यूटेड एवरीवन नोज ड्यू टू दी हार्मफुल गैसेज। व्हीकल से, फैक्ट्रीज से जो हार्मफुल गैसेज रिलीज़ होती है, उसकी वजह से क्या होता है, एयर जो है वो पॉल्यूट हो जाता है। इंक्रीजिंग कंटेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज इन द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। ना फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, जब हम इनसे बर्न करते हैं, जब उसको जलाते हैं, उसके अंदर होता है नाइट्रोजन, सल्फर। तो व्हेन वी बर्न दिस, इट फॉर्म्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर हार्मफुल। तो जब बारिश आती है तो ये बारिश जो है इस ऑक्साइड्स के साथ मिक्सअप होकर इट फॉर्म्स व्हाट, एसिड रेन। Burning of fossil fuels also release unburnt carbon particles which reduce visibility. During cold weather, along with condensed water, it forms smog. Now, now burning of fossil fuels also release unburnt carbon particles, जिसको हम हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, which reduce visibility. अब क्या होगा यहाँ पे, you can see, look at this in diagram. हार्मफुल गैसेस रिलीज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स रिलीज होता है। गैसेस कैरिड बाय द विंड से वो गैसेस कैरी हो जाते हैं। रेन के साथ मिक्सअप होने के बाद इट फॉर्म्स एसिड रेन विच इज़ हार्मफुल फॉर द बायोलॉजिकल साइकिल। जो बायोलॉजिकल साइकिल है अर्थ के ऊपर, ओके, दैट इज़ बिन अफेक्टेड। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म इससे अफेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज स्मॉग। ये जो है फॉसिल फ्यूल के बर्निंग की वजह से हुआ है। जब वो रिलीज़ होता है अनबर्न्ड, जब ये बर्न नहीं हो रहा है, कार्बन पार्टिकल दैट इज़ हाइड्रोकार्बन्स जो है वो हवा में ही रह जाते हैं। ठीक है, ठंडी के मौसम में क्या होता है, ये कार्बन पार्टिकल्स जो है वो फॉर्म करता है स्मॉग। यू कैन सी, जहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन है वहाँ का स्मॉग इस तरीके से होगा, जहाँ पे कम पोल्यूशन है वहाँ का स्मॉग इस तरीके से होता है। अंडरस्टूड? सो ओनली दिस मच फॉर टुडे, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन।